I'm doing previous year question which is based on material science, and this question contains the previous year questions of GATE IAS and IAS. So I'm covering almost last 20 year questions. So okay, let's start today's video. So this is about myself. Okay, so here is a match list kind of question. It is of iron carbon diagram. Okay, so alpha iron carbide having crystal lattice with 3 iron 1 carbon atom. BCC pure allotrope of iron is stable between 1388 degrees centigrade, melting point at 1535 degrees centigrade. Okay, alpha iron eutectic ferrite cementite. Let's match with these things. Okay, see this alpha iron. Okay, alpha iron is nothing but it is ferrite, and iron carbide having crystal lattice with 3 iron and 1 carbon is cementite, and BCC pure allotrope of iron is stable between 1388 degrees centigrade and is melting point at 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स एक्चुअली डेल्टा आयरन. ओके, अगर आपने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फेज डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, आइसोमॉर्फस सिस्टम, यूटेक्टिक सिस्टम, पेरिटेक्टिक सिस्टम, मोनोटेक्टिक सिस्टम. Okay, so one liquid decomposes into another liquid and solid. One liquid and another solid combine to form a new solid. Two metals are completely soluble in liquid state, completely insoluble in solid state. Two metals soluble in solid and liquid state. Okay, so let's match with this. Fine. देखिए, isomorphous is nothing but it's two, one liquid and another solid combined to form a new solid. Okay, eutectic is matched with the 3. Two metals are completely soluble in liquid state and completely insoluble in solid state. Okay, peritectic is matched with the 4. Two metals soluble in solid and liquid state. Okay, जो बचा monoclinic, it will be matched with 1. So it is one liquid decomposes into another liquid and solid. Okay, so its answer is A. Next question. According to Gibbs phase rule, the number of degree of freedom of an eutectic point in a binary system is. Okay, इट इज एक्चुअली देखिए आपका होता क्या है, दिस इज द गिब्स फेज रूल. ओके, सो P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2 होता है. इसमें P को इस साइड में कर लिया, वेट दिस C इज द कंपोनेंट, P इज द फेज, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2. ओके, फेज इज 3. सो इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर यू विल गेट 1. ओके, सो यूटेक्टिक पॉइंट पे ऐसा होता है, द कंपोनेंट इज 2, फेज इज 3. So if you put this value in this equation, you will get 1. Okay, so its answer is A. So for using this phase rule, we should know the how many components are there and how many how many phases are there. So those numbers we have to put in this equation, and we can get the F value. Next question. In a eutectic system, टू एलिमेंट आर कम्प्लीटली इंसॉल्युबल. देखिए, अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन किए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. इंसॉल्युबल इन सॉलिड, क्योंकि उसमें डेफिनेशन दिया हुआ था उसका ना, हमें मैच कराना था. लिक्विड स्टेट, सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट, इनसॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट. आंसर एक्चुअली बी, सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट. जस्ट रिमेंबर दैट यूटेक्टिक सिस्टम टू एलिमेंट Next question. Eutectic reaction for iron carbon system occurs at. देखिए, इसमें आप कुछ गेस नहीं कर सकते हैं. अगर आपको आयरन कार्बन डायग्राम पता है तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं.
Okay, 600 degree centigrade, 723 degree centigrade, 1147 degree centigrade, 1493. इट्स आंसर एक्चुअली भी 723 पे हमारा यूटेक्टिक रिएक्शन होता है. ओके, अगर आपने पढ़ा होगा आयरन कार्बन डायग्राम, सो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, यूटेक्टिक रिएक्शन फॉर आयरन कार्बन system occurs at 723 degree centigrade. Okay, next, which one of the following is correct statement? Okay. Perlite in iron carbon system is a phase consisting of ferrite and cementite at room temperature, mechanical mixture of ferrite and cementite at room temperature, eutectic mixture ferrite and cementite at room temperature. All of three are correct. Okay, actually B, mechanical mixture. Okay, mechanical mixture of ferrite and cementite at room temperature. Okay, फिर से देखिए इसमें वही हमारा रिएक्शन जो होता है अलग अलग यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, मोनोटेक्टिक, उसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो हमें मैच कराना है. ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको आयरन कार्बन डायग्राम पता होना चाहिए तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी आप करो ये गलती होना है. Okay, so I will suggest you please read the iron carbon diagram. Anyway, once I will deal the material science lecture series, there I will deal this in very broader way. So actually see in monotectic में क्या होता है, it is matching with the two, जो liquid D1 है it will convert into liquid D2 and solid. Okay, and eutectic में क्या होगा, it is matching with 1, so liquid will convert into solid 1 and solid 2. Okay, and eutectoid is matching with the 3. 1 second, I will change the pen. Okay, yeah, it is matching with 3, that is solid 1 is converted into solid 1 plus solid 2, and this peritectic is matching with 4, so liquid plus solid 1 changes to solid 2. Okay, so its answer is T. Okay, so देखिए ये क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए ये सारे रिएक्शंस, तो ये आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फेराइट फेज इन स्टील इंक्रीजेस. ओके, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस. इट इज एक्चुअली सी, डक्टिलिटी. Next question, a 60C plain carbon steel has approximately 75% perlite, 25% ferrite. Okay, बस वही पर नंबर के साथ खेला है, 25% perlite, 75% ferrite, 75% cementite, 25% ferrite, 75% perlite, 25% cementite. Okay, so it is actually A, 75% perlite and 25% ferrite. Okay, so just read the explanation. Perlite contains 0.8% carbon, the ferrite contains 0.6% carbon. 60C plain carbon steel, 75% 0.8 and 26% 0.006. इसकी इन दोनों की बात करो. Okay, so it is 0.6% carbon. Okay, so it's like 75% perlite and 25% ferrite. याद रख लो. Okay, 60C में 75% perlite and 25% ferrite. देखिए perlite consist of 6.67% carbon and 93.33% ferrite, 13% ferrite and 87% cementite, 13% cementite, 87% ferrite, 13% cementite, 87% ferrite. So its answer is D, 13% cementite and 87% ferrite. Okay, 13% cementite and 87% फेराइट. देखिए इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही रटना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट, a given steel test specimen is studied under a metallurgical microscope. The magnification used is 100x. In that different phase are observed. One of them is Fe3C. Observe phase Fe3C is known as ferrite, cementite, austenite, martensite. Okay, देखिए ये एकदम
बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है आयरन कार्बन डायग्राम, ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि Fe3 कहते क्या है। ओके, इट्स सीमेंटाइट, दैट्स इट। ओके, कितनी बार कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग set of constituent is expanded in equilibrium cooling of hypereutectide steel from austenitic state. Okay, so it's a ferrite and perlite, cementite and perlite, ferrite and benite, cementite and martensite. Okay, so hypereutectide steel के बारे में बोल रहा है। It is actually the cementite and perlite. नेक्स्ट, ओके पढ़ते हैं इसको, देखते हैं थोड़ा सा। टू प्लेन कार्बन स्टील स्पेसिमेन हैविंग 0.8% कार्बन कंटेंट आर वेल्डेड इफ वी ऑब्जर्व द वेल्डमेंट अंडर द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स आइदर साइड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन एट डिफरेंट जोन्स। ओके, प्लेन कार्बन स्टील स्पेसिमेन 0.8% कार्बन कंटेंट आर वेल्डेड। ओके, वेल्डेड की बात बोल रहे थे। ओके, फाइन परलाइट, कोर्स परलाइट, मार्टनसाइट। ओके, इट इज एक्चुअली ओके, देखिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारे देखो मार्टनसाइट होगा, फिर परलाइट होगा, फिर कोर्स परलाइट होगा। ओके, तो इट्स आंसर इज टी। क्योंकि देखिए वेल्डेड है तो सबसे ऊपर जो होगा सबसे तेजी से वो सूखेगा, आई मीन नॉट सूखेगा, इट विल कूल। जो फास्टर जब कूलिंग होती है तो मार्टनसाइट फॉर्मेशन होता है, एंड इट्स द हार्डेस्ट फॉर्म, और ऑब्वियसली इट विल गिव द स्ट्रेंथ। ओके, सो द फास्ट कूलिंग विल गिव द मार्टनसाइट। ओके, सो द मैक्सिमम कूलिंग रेट प्रोड्यूस मार्टनसाइट, जो मैं भी आपको बोल रहा था। मीडियम कूलिंग रेट प्रोड्यूस फाइन परलाइट, एंड लो कूलिंग रेट प्रोड्यूस कोर्स परलाइट। ओके, तो मीडियम कूलिंग जब होगा, जब मीडियम कूलिंग होता है तो हमारा फाइन परलाइट होता है, और जब लो कूलिंग होता है बट लो कूलिंग होता है तो कोर्स परलाइट फॉर्म होता है। आप यहीं से इसको याद कर लो। फास्ट कूलिंग होगा तो मार्टनसाइट फॉर्मेशन होगा। ओके, जैसे किसी चीज़ को हीट करो और तुरंत पानी में डिप करते हो ना, सडन कूलिंग होता है, तो इस केस में क्या होगा, इट विल फॉर्म अ मार्टनसाइट। मीडियम कूलिंग होगा तो इट विल इट विल गिव द फाइन परलाइट, एंड इफ इट इज लाइक लो कूलिंग देन इट विल गिव कोर्स परलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच लिस्ट बोल रहा है। परलाइट, मार्टनसाइट, ऑस्टेनाइट, यूटेक्ट्राइड। ओके, सो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल फेज। ओके, इससे हमको मैच कराना है, गेट वाले क्वेश्चन है। सीमेंटाइट इज फाइनली dispersed in ferrite. Okay, alternate layer of the cementite and ferrite can exist only above 723 degrees centigrade. Okay, pertaining the state of equilibrium between the two solid state, pertaining the state of equilibrium between one liquid and two solid phase. So इसमें देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1992 का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं, तो उसमें ना सब्जेक्टिव टाइप का भी होता था। ए को देखिए आर से मैच होगा, परलाइट, इट इज अल्टरनेट लेयर ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट, सही है। मार्टनसाइट, तो मार्टनसाइट हमारा जो मैच हो रहा है इट इज बी से मैच होगा, पी से। ओके, सो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल फेज, बिल्कुल मार्टनसाइट जो होता है इट इज हार्ड होता है, हार्डेस्ट फेज होता है, और इट इज बीसीसी स्ट्रक्चर इसका होता है, दैट इज ब्रिटल फेज। ओके, और ऑस्टेनाइट का एस होगा। ओके, आपको पता है आयरन कार्बन डायग्राम में कैन एग्जिस्ट ओनली 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्टेनाइट इट्स गामा फेज। ओके, ये एफसीसी स्ट्रक्चर इसका होता है, इट्स ऑलवेज फॉर्म अबव 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड देन यूटेक्ट्राइड होगा हमारा टी। ओके, पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन थ्री फेज सॉलिड। ओके, हाँ ऑब्वियसली बात है। ओके, यूटेक्टिक रिएक्शन आपको पता है तो थ्री फेज सॉलिड फेज होते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप इसको इजीली कर सकते थे अगर आप पीछे वाले सब वीडियोस को देखा हुआ है, आराम से इसको आप कर सकते थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्टनसाइट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा फेज, बीटा फेज, गामा फेज, डेल्टा फेज। गामा तो होगा नहीं, सो इट इज एक्चुअली ए अल्फा फेज।
ओके, गामा इज ऑस्टेनेटिक, वहाँ उसमें मार्टनसाइट नहीं होता है। नेक्स्ट ओके, इसमें देखते हैं कि कुछ तो बोल रहा है। फेज डायग्राम दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग लेड एंड टीन फेज डायग्राम, which one of the following alloy composition the alloy will have lowest melting point at 185 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इस पॉइंट पे बोल रहा है कि ये दिस पॉइंट, ठीक है 185, मतलब यहाँ पे जो भी जैसे 200 है तो ये कहीं पे होगा 185। ओके, तो 185 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है कि कंपोजिशन क्या होगा। ओके, 20% टिन एंड 80% lead, 60% tin, 40% lead, 97% tin, 3% lead, 40% tin, 60% lead. Okay, so its answer actually B, 60% tin and 40% lead. Okay, ये this point. Okay, यहाँ पे तो ये पूरा tin हो जाएगा, ये हमारा lead हो जाएगा। Okay, so this is the thing. तो सीधा सीधा ये इस पॉइंट को ये 185 बोल रहा है। Okay, this point. ओके, तो 60% टिन हो जाएगा, 40% लेड हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए इसको अभी एक्चुअली में वो निकालने के लिए हमें लीवर रूल लगाना होता है। फिर जब मैं मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कैसे करना, बट अभी आप इसको याद कर लो। ओके, Okay, so we have completed today's video of material science. I will come up with more question of material science, and my target is to finish entire material science previous year question. It will contain questions of more than 20 years. Okay, thank you for watching. Bye bye.